welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is types of proposal. But before we begin, please subscribe to my channel if you have not subscribed it yet. If you are new to my channel, subscribe my channel right now, and if you enjoy learning with me, if you understand what I am teaching, do like all my videos and let me know in the comment section. So let's get started. I've already told you कि जो हमारा proposal chapter होगा under the Indian Contract Act 1872, that will be covered in 3 lectures. This is my part 2 in which we'll be discussing types of proposal. In my previous video, I've already discussed what is meant by proposal, what are the essential elements of a valid proposal. उस video का link आपको description box में मिल जाएगा. And in my upcoming video, I'll be discussing invitation to proposal. So let's get started with types of proposal. So we'll be discussing 4 types of proposal. First is the expressed or implied proposal. Second is the specific and general proposal. Third is the cross proposal and fourth is the standing open or continuing proposal. Right, तो ये 4 types of proposal को हम discuss करेंगे. Beginning with the first, which is expressed or implied proposal. I hope ये बहुत लोगों को already पता होगा. Section 9 of the Indian Contract Act, gives us the definition of what is expressed and implied proposal. देखो, proposal expressed कब होगा? When it is either written or oral. It may either be a piece of writing or a word of mouth, right? I've already told you if A, asks B that I wish to sell my car to you worth 2 lakh rupees. Will you buy my car? ये क्या है? एक expressed proposal है जो A ने B को रखा. Expressed मतलब either written or oral. A जो है वो B को phone call भी कर सकता है and he can make this offer, this proposal on a phone call. तब अगर वो फ़ोन कॉल करेगा वो भी एक एक्सप्रेस्ड प्रपोजल की एग्जाम्पल होगी. मोर ओवर ए में राइट अ लेटर टू बी इन्फॉर्मिंग हिम दैट आई विश टू सेल माई कार टू यू वर्थ 2 लाख रुपीज़. तो यहाँ पे ये भी क्या है? चाहे वो रिटन है चाहे वो ऑरल है, इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रपोजल. सेक्शन 9 हमें बताता है. सेक्शन 9 ऑल्सो टेल्स अस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन इम्प्लाइड प्रपोजल इज. इम्प्लाइड प्रपोजल इज अ प्रपोजल which is made otherwise than in words. Now what is meant by otherwise than in words? मतलब एक ऐसा proposal जो words में नहीं कहा गया, neither written nor oral, but it is implied, it is inferred from the conduct of the parties. ये implied है. implied किस तरीके से? It is inferred from the conduct of the parties. I've given several examples जब हम basics cover कर रहे थे Indian Contract Act के, और मैंने बताया भी था जैसे कि if you avail bus service, if you avail a restaurant service, or you go to a railway station and you avail the services of a coolie. All these are examples of an implied proposal. क्योंकि I'll explain it. If you go to a railway station, वहाँ पे coolie never asks you that may I pick up your luggage. ऐसा कभी होता है? No. ऐसा कभी नहीं होगा. He will make an implied proposal to you, and if you allow him to pick up your luggage, it means you have given an implied acceptance to that implied proposal of the coolie. और अब वहाँ पे ये नहीं कहोगे कि coolie ने मेरा luggage अपनी मर्जी से उठाया, मैंने कूली को नहीं कहा था उठाने के लिए, इसलिए आई विल नॉट बी बाउंड टू पे दैट पर्सन. राइट, वो एक इम्प्लाइड प्रपोजल था विच वॉज इन्फर्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट एंड यू गेव एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू दैट कंडक्ट. Similar is the example of a bus service or a restaurant service if you avail, right? Moving on to the specific and general proposal. Specific proposal, as the term indicates, is made to a specific person. If A says that I wish to sell my car only to B, now B is a specific person for A. स्पेसिफिक प्रपोजल जो आप एक स्पेसिफिक इंसान को प्रपोजल भेजते हो, जो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हो टू सेल समथिंग, और इट मे बी एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 2 पीपल, वो स्पेसिफिक ही होते हैं. यू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्पेसिफिक पर्सन. If I talk about general proposal is a proposal which is made to public at large. It's not a contract जो आप एक specific person के साथ करते हो. It's a contract which is made to public at large, and whosoever from that general public voluntarily accepts that proposal of yours, that general proposal of yours, उस इंसान के साथ आपका जो contract है वो हो जाता है. Now if you are a regular student, if you are studying with me, something might be striking at the back of your mind, because yes my friends, हमने previous video में discuss किया था लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इस केस लॉ को मैंने डिस्कस किया था previous video में part 1, जब हमने essentials of a valid proposal डिस्कस करे थे. उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जनरल प्रपोजल होता है. आपको याद होगा उसके फैक्ट्स. तो देयर वाज अ डिफेंडेंट का नेफ्यू ही हैड एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज होम. डिफेंडेंट ही सेंट हिज सर्वेंट कि आप मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ, और जब डिफेंडेंट का सर्वेंट हैड लेफ्ट, और उसके बाद ही ऑल्सो इशूड हैंडबिल्स जिसमें उसने बताया कि whosoever from general public voluntarily brings my nephew back to this home, I'll be rewarding that person with 501 rupees. So it was a general proposal
विच वॉज मेड बाई द डिफेंडेंट टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल प्रपोजल में क्या रहता है कि आप प्रपोज करते हो पब्लिक को एट लार्ज, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पब्लिक में वॉलंटरली जो भी इंसान करेगा उसको फुलफिल, यू आर ऑब्लिग टू पे दैट पर्सन बिकॉज इट इज़ डीम्ड कि आपका उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जिस इंसान ने वॉलंटरली आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हो, एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स का। जब हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे वो मैंने वीडियो कवर करवाई थी, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने उस टाइम भी बताया था कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जाम्पल रहती है जनरल ऑफर्स। तो आज हम जनरल ऑफर्स डिस्कस कर रहे हैं, जनरल प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इट इज़ अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेवर एवर थिंक कि जनरल प्रपोजल क्योंकि वन साइडेड होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी। अब एक और हम केस लॉ डिस्कस करते हैं विच इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पॉल कंपनी। ये दोनों केस लॉज बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशंस हैं ऑन दिस पॉइंट जनरल प्रपोजल। इसमें क्या होता कि देयर वाज अ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उन्होंने अपनी स्मोक बॉल्स को मैन्युफैक्चर किया और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लगवा दी कि whosoever consumes these smoke balls made by the carbolic smoke ball company, that person will never catch influenza। उसको कफ कोल्ड इन्फ्लुएंजा कभी भी नहीं होगा। एक विमेन ने नेम्ड मिसेस कार्लिल, उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में रीड किया और रीड करने के बाद वो केमिस्ट के पास गई, नियर बाय केमिस्ट, एंड शी बॉट दोज स्मोक बॉल्स so as to prevent herself from catching influenza, cold, cough, etc. right? अब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी दैट यू हैव टू इनटेक दीज स्मोक बॉल्स थ्राइस अ डे फॉर 2 कंसेक्यूटिव वीक्स, राइट? और जो भी इन प्रिस्क्रिप्शंस को पूरा करते हुए इस डिमांड को फुलफिल करेगा, अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो दैट पर्सन कैन कम टू अस एंड दैट पर्सन कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। और उन्होंने वो अमाउंट क्या रखी थी, 100 पाउंड्स। तो उन्होंने ये पूरा सब कुछ एवरीथिंग वाज जॉट डाउन इन दी एडवर्टीजमेंट वेरी प्रॉपरली। विमेन ने क्या किया, शी एक्टेड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट ऑफर, बिल्कुल प्रॉपरली उन्होंने फॉलो किया एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट शी गॉट इन्फ्लुएंजा। नाउ दिस विमेन स्यूड द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, राइट? शी सेड आई वांट कॉम्पनसेशन। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी दे कंटेंडेड कि हमारा यहाँ पे कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था विद दिस फीमेल, इसलिए वी पीपल आर नॉट ऑब्लिग्ड टू पे हर एनी कॉम्पनसेशन। तो कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ पे गलत हो। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल प्रपोजल। It was a proposal made by you to public at large, and whosoever voluntarily accepts it, provided they have acted upon the terms and conditions of that contract, you are obliged to compensate that person since you have promised it, right? तो उन्होंने कहा कभी मत सोचना कि जनरल प्रपोजल्स में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जाम्पल रहती है जनरल प्रपोजल्स। दीज आर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? उसके बाद विल बी डिस्कसिंग क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल क्या रहता है, एक ऐसा प्रपोजल जो क्रॉस करता है एक दूसरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ अ पर्सन लिविंग इन दिल्ली, बी इज़ अ पर्सन लिविंग इन बॉम्बे। ए writes a letter to B that I wish to sell my property to you worth 2 crore rupees, and on the same date, for example, A ने 1st of January 2021 को ये लेटर B को लिखा, and on the same date, that is on 1st of January 2021, B also wrote a letter to A saying that I wish to buy your property worth 2 crore rupees. Isn't it interesting? A और B दोनों ने एक ही दिन एक दूसरे को लेटर लिखा और उनमें क्या थे, सिमिलर और आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बार्गेन। वही प्रॉपर्टी A 2 करोड़ में बेचना चाहता है और वही प्रॉपर्टी B भी 2 करोड़ में लेना चाहता है A से। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रपोजल में क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बार्गेन होते हैं तो इनका जो प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब वो पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट में क्रॉस करेगा। इट इज़ फॉर श्योर कि उनका जो प्रपोजल है वो जो एक दूसरे को क्रॉस करेगा इन पोस्ट, इसीलिए इसका नाम रखा है क्रॉस प्रपोजल। एक ऐसा प्रपोजल विच इज़ गोइंग टू क्रॉस इन ऑन इट्स वे टू द अदर पर्सन। बट इसमें एक ब्यूटी है इस प्रपोजल की, वो ये है कि इसमें देर आर 2 ऑफरर्स एंड 2 ऑफरीज। इट मीन्स देर आर 2 प्रपोजर्स एंड 2 प्रपोजर्स। ए अपने लिए एक प्रपोजर है जब उसने कहा कि आई विश टू बाय योर प्रॉपर्टी वर्थ 2 करोड़ रुपीज़। तो ए कौन हुआ, बी कौन हुआ, प्रपोजर हुआ। उसके लिए प्रपोजी ए है। लेकिन जब ए ने ऑफर रखा था, ए ने प्रपोजल रखा था आई विश टू सेल माई प्रॉपर्टी टू यू वर्थ 2 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पे ए प्रपोजर था और बी प्रपोजी था। तो इस प्रपोजल में, इस कॉन्सेप्ट में क्या रहते हैं कि दो देर आर आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बार्गेन, राइट? बट यहाँ पे देर आर 2 ऑफरर्स 2 ऑफरीज, और इन अदर वर्ड्स देर आर 2 प्रपोजर्स एंड 2 प्रपोजेस। सो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। Cross proposal is not a proposal in itself, it's not a contract in itself until and unless an acceptance is given to it. इसमें 2 offerers हैं, 2 offerees हैं, 2 offers हैं,
there are 2 proposals but there is no acceptance, so it's a point to be written that there is no acceptance in a cross proposal. इसमें acceptance नहीं होती है, so it is not a valid contract until and unless acceptance is given to it by any of the 2 people. या तो B A के ऑफर को accept कर सकता है या A B के ऑफर को accept कर सकता है. Talking about the last type of proposal which is the standing open or continuing proposal. ये एक ही प्रपोजल के 3 डिफरेंट नेम्स हैं. अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल क्या कहती है कि सपोज ए सेज टू बी दैट आई विश टू सेल यू 1000 बैग्स ऑफ राइस, और बी उन बैग्स को खरीदने के लिए तैयार है. अब बी बोलता है कि आज है 1 जनवरी 2021, बाय 31 मार्च 2021, इट मीन्स वी हैव 3 मंथ्स. इन 3 महीनों में मैं जैसे जैसे आपसे राइस के बैग्स मंगवाऊंगा वैसे वैसे आप मुझे देते रहना. इट मीन्स कि ए ने प्रपोजल बिगिनिंग में बी को दिया. नाउ दैट प्रपोजल इज ओपन फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स. 3 महीने के लिए वो प्रपोजल ओपन है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. फॉर दीज 3 मंथ्स proposal which is given by A, it is open to B, right? B can accept it any time within these 3 months over a period of time. B उसको accept कर सकता है. Now B ने कहा A को on 15th जनवरी 2021, 15 दिन के बाद, कि मुझे 200 बैग्स ऑफ राइस चाहिए. A ने क्या किया, B को 200 बैग्स ऑफ राइस पहुंचा दिए B की डेस्टिनेशन पे. इट मीन्स B ने कहा था कि योर प्रपोजल इज ओपन, मैंने आपसे 1000 बैग्स लेने हैं. इट इज़ ओपन open for what? Open for acceptance by this person B over a period of time. That period is 3 months and it can be any, for a year or 6 months, कोई भी हो सकता है. Hypothetical example, right? तो 3 महीने के लिए open है. And as and when need arises, I'll be asking you. तो जब B A को कहेगा कि मुझे अब 200 बैग्स चाहिए, मुझे अब 100 बैग्स चाहिए, तो उस टाइम पे आपकी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होगी. तो जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. हमने एसेंशियल्स डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर दी वैलिड स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तक हम पहुंचेंगे. वी हैव टू क्लाइंब सम स्टेयर्स, राइट. तो अब बी ने क्या किया, 15th को ए को कहा कि आई नीड 200 बैग्स ऑफ राइस, यानी कि ए के प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो चुकी है अप टू 200 बैग्स, अप टू सम एक्सटेंट. और वो एक्सटेंट क्या है, 200 बैग्स. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, इज इट. अब सिमिलरली 1 महीने बाद 15th फरवरी को फिर बी ए को बोलता है कि आई नीड नेक्स्ट 200 बैग्स, क्योंकि एज एंड व्हेन नीड अराइजेज बी विल बी आस्किंग ए टू मेक द डिलीवरी. तो बी फिर ए को बोलता है कि मुझे 1 महीने बाद 15th फरवरी दैट आई वॉन्ट नेक्स्ट 200 बैग्स ऑफ राइस. अब ए का जो प्रपोजल है वो तो ओपन है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग है. उसको एक्सेप्टेंस जैसे जैसे मिलती जा रही है वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है. अब उसने फिर 200 बैग्स को सप्लाई कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट 2 हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, इज इट. सिमिलरली बी अपना एक्सेप्टेंस देता रहेगा एज एंड व्हेन नीड अराइजेज, और ए जो है उसको बैग्स पहुंचाता रहेगा. इस तरीके से एक बड़े स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग प्रपोजल में, बड़े प्रपोजल में विच इज़ ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस बड़े प्रपोजल में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड हाउ आई डायग्रामेटिकली शोन यू किस तरीके से एक बड़े प्रपोजल में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. इसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग प्रपोजल, अ प्रपोजल विच इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अ पर्सन. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि ए जो है ही कैन रिवोक हिज प्रपोजल, वो अपने प्रपोजल को रिवोक भी कर सकता है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 1000 बैग्स पूरे के पूरे ए ने बी को देने ही देने हैं. ए जो है वो अपने प्रपोजल को, ओपन प्रपोजल को रिवोक भी कर सकता है. बट रिवोकेशन कब पॉसिबल होगी, जब तक उसके ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिली. अगर बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस किस तरीके से मिलेगी, एज एंड व्हेन बी की नीड अराइज होगी, उस तरीके से उस टाइम पे बी ए को बोलता रहेगा कि मुझे अब सप्लाई करो. जब तक ए के ओपन प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं मिली तब तक दैट ऑफर इज केपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड, उसको आप रिवोक कर सकते हो. बट जब ए के ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है फिर वो रिवोक नहीं कर सकता. इट मीन्स कि सपोज अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि 20th फरवरी 2021, राइट, इस डेट के 5 डेज बाद में 20th फरवरी 2021 को बी ए को फिर बोलता है कि मुझे 100 बैग्स ऑफ राइस चाहिए. तो ए को 100 बैग्स ऑफ राइस देने होंगे. बट अगर ए 18th को, ठीक है, 18th को मतलब उसकी डिमांड के 2 दिन पहले ही उसको बोल देता है 18th को कि मैं अपना ऑफर रिवोक करने लगा हूँ ड्यू टू सम इवेंट हैपनिंग, आई कुड नॉट प्रॉमिस, आई कुड नॉट फुलफिल दैट प्रपोजल. मैंने आपको 400 बैग्स दे दिए, रिमेनिंग 600 में नहीं दे पाऊंगा ड्यू टू सम इश्यूज़. तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ए हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलेगी. लेकिन यहाँ पे इस प्रपोजल को, इस ओपन प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी.
So before an acceptance is given to an offer, that proposal or an offer can be revoked by this person since it is not a contract. अभी तक वो contract नहीं है, हम types of proposal read कर रहे हैं, is it? बट जैसे ही बी उसको एक्सेप्ट करेगा, ए को एक्सेप्टेंस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद वो कभी भी रिवोक कर सकता है अनटिल एंड अनलेस एन एक्सेप्टेंस, फर्दर एक्सेप्टेंस इज गिवन टू इट. इज इट? आई होप गाइज आपको समझ आए व्हाट इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग प्रपोजल. ईजी है, यू हैव टू जस्ट लुक इनटू दिस डायग्राम सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच गाइज. आज के टॉपिक में हम यही इतना ही डिस्कस करेंगे. दीज आर दी ओनली 4 टाइप्स ऑफ प्रपोजल. स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड बाय बाय. थैंक यू गाइज.